lounge. We have titled it as Meet the Creative Personalities. We request Dr. Vinay Kumar sir, Manisha Kulshresht, and Abhishek Anika to come near the stage. We have with us a painter, a writer, novelist, a poet, and a person who is a performer, a person who is a survivor, and also will talk about his lived experiences. They both have something common, something that binds us, something that matches with the theme of this conference. We request Dr. Vinay Kumar sir to introduce our creative personalities for the evening. Misuse our mobile phones during sessions. I request you to use your mobile phone and call your friends, those who are roaming around, loitering around, or doing something which is not so important. I request Aarti to send a message to in the faculty group. Request again them to be here. Dear friends, it's a different evening, very different evening. What happens? We doctors speak and people listen. We doctors speak, doctors listen. Doctors listen only to their wives or husbands. That is the problem. So, but here, you will be at the receiving end and other people will be talking to you. One cannot say, or it's fact, that we also listen to others. We listen to philosophers, we listen to politicians, even not so acceptable things we listen. We listen to bureaucrats. But the way you have to listen today is a unique thing. The whole conference has been about art, literature, psychiatry. So psychiatry is with us, but art and literature, we consider ourselves as a kind of visitor. Here, this conference is all about mixing everything, talking in a common language. I am reminded by a statement by Professor N.N. Wig, who was mentor of Professor Salman Akhtar. He said in an interview to me that in old times, poets, physicians, and common men used to talk in common language. He used to refer Ramcharitmanas कि जहाँ पे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कफ, पित्त, वात, all these words were the common terminology for interaction. Today, what we talk, our clients, our society doesn't understand. What they talk, probably at times you don't understand. So there is a need to develop a common language. And that's the purpose of this evening. With this, I'm inviting our three creative personalities. We were thinking whom we must invite. So we invited one artist, one novelist, and one author who has written a beautiful book of prose, which has lots of poetry. So a combination of all these things. So let me introduce, first of all, Akhilesh ji. Akhilesh ji is a famous painter.
I would say, of international repute, an author with around 18 books to his credit. He works in and lives in Bhopal, and he is with us. I sincerely request Akhilesh ji to be with us on the dais. One good thing about Akhilesh ji is that he has been in close contact with very famous and very, very famous painter Maqbool Fida Hussain Sahab. Maqbool Fida Hussain Sahab, please have a seat. Maqbool Fida Hussain Sahab, his father's friend, and they have been in very close contact, and always met and had lots of conversation. Then S.H. Raja Sahab and Swaminathan. So three famous artists from India of international repute who did remarkable job in the field of painting. He has been in their close contact, and his painting is also of international repute. Our next guest is Manisha Kulshrestha. Manisha Kulshrestha जी जयपुर में रहती हैं, उपन्यासकार हैं, यात्रा वृत्तांत इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, कविताएं लिखती रही हैं, कहानियों के संग्रह बहुत सारे। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि मनीषा कुलश्रेष्ठ जी लगातार लिखती रही हैं, और कोई ऐसा साल नहीं आया जिसमें एक नई किताब नहीं आई और उसने नई ज़मीन नहीं तोड़ी, नए इलाके का संधान नहीं किया। आज ये इनके होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि उपन्यासकार हैं और कहानीकार हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इनका एक उपन्यास जिसकी प्रतियां उपलब्ध हैं हमारे जो वहाँ पे एग्जीबिशन एरिया है, उसमें उपन्यास का नाम है स्वप्नपाश, और उस स्वप्नपाश की जो नायिका है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो एक आर्टिस्ट है और उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, प्रोडिजी है, आर्टिस्ट है और एक आर्टिस्ट फैमिली से आती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से इन्होंने जो नॉवेल लिखा उस उपन्यास का अनुवाद भी हुआ है यूक्रेनी भाषा में, और उसके अलावा वो उस उपन्यास को बिहारी पुरस्कार, एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, वो पुरस्कार मिला इनको। और मेरा ख्याल है कि इनकी लगभग सारी किताबों पे कोई ना कोई पुरस्कार मिला है। मनीषा जी की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये कि इनकी विजुअल मेमोरी कमाल की है। इस दृश्य देख लेती हैं, जहाँ भी जाती हैं, जहाँ भी, चाहे वो मनुष्य हो या प्रकृति हो या कोई इलाका हो, कोई आर्किटेक्चरल डिटेल हो, इनके उपन्यासों में ऐसे गुथ के आता है, ऐसे जैसे कि वो सामने बैठ के आपको दिखा रही हैं। तो ये जो दिखाने की जो कला है इनकी किताबों में, वो कमाल की है। और आप हिंदी की आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा सराही जाने वाली और सबसे अनोखे अनोखे विषयों पे लिखने वाली लेखिका हैं। इनकी पिछले साल जो किताब आई थी, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल किताब थी, नाम है त्रिमाया। उसमें 3 अलग अलग कहानियां हैं, एक हाथियों पे, दूसरा एक नायर समुदाय जो केरल में है उस पर, और तीसरा खासी समुदाय पे। 3 समुदायों की 3 कहानियों को वो एक साथ अलग अलग लिखती हैं। आपको लगता है 3 उपन्यास पढ़ रहे हैं, जब आप ख़त्म करते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें जोड़ती है उसको, और अंत में आप महसूस करते हैं कि नहीं, वो तीनों कहानियाँ एक बड़े आख्यान को रच रही थीं। सो ऑल दीज स्टोरीज created a kind of grand narrative for something. So you need to read the book, buy a book and read the book. So I'm not disclosing the detailed content of the book. So with this, I welcome Manisha Kulshrestha ji. Please, तालियां वालियां बजती रहें। हमारे तीसरे गेस्ट अभिषेक अनिका। अभिषेक, थोड़ी इनकी सहायता करेंगे। अभिषेक पटना में रहते हैं और मैं इन्हें बचपन से जानता हूं। पटना में एक सेंट माइकल स्कूल है, वहाँ ये पढ़ाई करते थे।
तब से मैं जानता हूँ और मेरे लिए तो एक तरह से परिवार के सदस्य जैसे हैं। अभिषेक ने जो जीवन जिया है, अभिषेक ने आप जो सविनियर आपके हाथ में है उसका डिटेल परिचय है, मैं उसको डिटेल पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, आप उससे गुजरेंगे क्योंकि सबके हाथ में सविनियर है और समय भी बचाना है आगे बातचीत के लिए। तो अभिषेक ने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, उसके बाद जब ये कलम उठाते हैं, अपनी शारीरिक मुश्किलों की वजह से परेशान होते हुए, ज़िंदगी जीते हुए जब ये कलम उठाते हैं, तो जो कहानी सामने आती है, जो कविता सामने आती है, जो लेख सामने आते हैं, जो डिस्कोर्स, जो विमर्श सामने आता है, उसका नाम है ग्रामर ऑफ माई बॉडी। तो उस किताब के साथ आए, किताब पेंगुइन से आई और किताब ने आते ही एक तहलका मचाया और पूरे देश में इन्हें पढ़ा जाने लगा और सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया इनके काम को। एक बार अभिषेक का हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे। I request Professor Subodh Dave to honor these three special guests of this evening. Subodh Dave. Subodh ji, please. As you all know, Subodh Dave is the Dean of Royal College of Psychiatry, very good friend of us. He is here for this conference. He just delivered a lecture and I request him to honor our guests. मनीषा जी, नेक्स्ट मनीषा जी। अखिलेश जी, I think one more gift. मनीषा जी जयपुर की हैं, ब्लू पॉटरी तो इनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। बातचीत पे आते हैं। Before I start asking something, I would like to request भाई जो अखिलेश जी की पेंटिंग है वो डिस्प्ले पे डाली जाए। अखिलेश जी से शुरू कर रहे हैं हम लोग वहां से। प्लीज डिस्प्ले पेंटिंग्स ऑफ अखिलेश जी। आपको मिल गया था सर? आप जब भी कोई पेंटिंग देखते हैं, कई बार उसमें कोई आकार होता है, कई बार पेंटिंग सिर्फ अपने रंग से कुछ खेल दिखाती है, कई बार उसमें मूवमेंट होता है, कई बार चीजें स्टिल होती हैं। वो नहीं, मैंने जो मेल की थी, ओह माय गॉड, नहीं जो आरती मेल किया था वो ठीक। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, तब तक वो पेंटिंग जो मेल की आप दिखाना शुरू करेंगे। असल में पहला सवाल ही उससे जुड़ा हुआ था कि अखिलेश जी की पेंटिंग की एक बड़ी खूबसूरत बात है, ख़ास बात है ये कि अखिलेश जी की पूरी पेंटिंग में रंगों का बड़ा कमाल दिखता है। कलर्स स्पीक, और रंगों के बारे में ये बहुत खूबसूरत बातें कहते हैं। इनसे जब भी हम लोग बातचीत करते हैं पेंटिंग के बारे में, तो किसी न किसी रंग के बारे में, किसी न किसी कलर के बारे में अक्सर कोई बड़े खूबसूरत बात कह जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यहीं से होगा, इसके पहले कि फ़ोन पे हम उसके जाएं जब तक पेंटिंग डिस्प्ले होती है, कि अखिलेश जी, डू योर कलर्स रिफ्लेक्ट योर मूड एंड लाइफ इवेंट्स?
In fact, it's really difficult to say that, but it provokes me and it inspires me actually. So I enjoy colors, and I try to use those colors which are not used by the artists in general, fluorescent colors or very bright colors, which I have learned through the tonalities of the black color, that how to use the brightest color. You say that at times that painting is a game of hide and seek with colors. Yeah, yeah. How do you explain this hide and seek with colors? In fact, painting is not only the subject of color only. It deals with form and it deals with line also. All these three important things, color, line, and form, are there. So you play with these three things, in fact. And most of the time, color surprises me that you find a different color in the same color. Like these days, I am doing a painting which is pink background, and I painted golden color over it, and the entire golden color turned into green. So when you see that painting, you will find that it's a green painted on pink, which is not true. It's a gold color which is painted on pink, and pink color dominates the gold color, and this is the green is the complementary color of the pink. So it changes, the tone completely changes, the color completely changes, and you find something new in the golden color. So that gives me a surprise. Most of the time it happens. I painted a blue, and then I put another blue on the same blue, and the third blue became gray. So you find that there is a gray in the blue. So it's a continuous process of finding the hidden color in it. Being an artist, you understand what unconscious is. What unconscious is, you understand is the psychoanalysts and psychologists, we all describe, but you experience what unconscious is. So, do you think that some color has any association with pain, any with association with pleasure, like that, in your work, in your journey? अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं, मगर एक मेरे को गालिब साहब का शेर याद आ रहा है, वो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है. वो शेर है, दोनों जहां दे के वो समझा ये खुश रहा. दोनों जहां दे के वो समझा ये खुश रहा, यहाँ आ पड़ी ये शर्म की तकरार क्या करें. सो इट्स लाइक दैट, हम किसी भी एक पेंटेड सरफेस पे को देख करके उसके बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं. तो उसमें दर्द भी है, उसमें खुशी भी है. किंतु मैं सोचता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, इफ दे आर नॉट एंजॉइंग देयर पेंटिंग, देन व्हाई दे आर पेंटिंग. सो इट्स ए मैटर ऑफ एंजॉइंग द होल process of the painting rather than the ये सब बात की बातें हैं, उसके पेंट होने के बाद की बातें हैं. नहीं, लेकिन वो एक सवाल मेरे मन में ये आता है हमेशा, और आपको लेकर के बाकी लोगों से कि आमतौर पे लोग फिगरेटिव जो पेंटिंग होती है, आकार रूप कुछ दिखता है, उससे लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थोड़ा कम होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस तो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है. अनकॉन्शियस जो चीजें होती है मनुष्य के भीतर, वहां तो कोई रूप नहीं होता है. वहां अगर चीजें भी होती है, अगर परसेप्शन ऑफ मेमोरी जो डाली की है उसको अगर सोचें तो उसमें कोई भी उसमें कोई भी चीज अपने सही रूप पे नहीं है. और अनकॉन्शियस में कोई भी चीज घड़ी घड़ी जैसी नहीं होती है, पेड़ पेड़ जैसा नहीं होता है. तो जाहिर है कि चीजें वहां होती हैं. तो क्या आपको लगता है कि जब जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं वो कुछ
अपने अनकॉन्शियस को ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं? माइक ऑन नहीं है आपका। हाँ जी। मेरे ख्याल से एक फिगरेटिव पेंटिंग भी कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती रियलिटी को। और सेज़ान ने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि पेंटिंग इज़ नॉट अबाउट एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज़ अबाउट इटसेल्फ। वो अपने बारे में है। और एक रियलिस्टिक पेंटिंग भी अगर कोई पेंट करता है और शुरू करता है, तो वो पूरा घोड़ा एक साथ नहीं बनाता है। हाँ, इसकी बैटरी खत्म हो गई। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच से शुरू करता है और वो फाइनली पहुंचता है एक फिगर पे, जो कि घोड़ा नहीं है। रेने मार्गरेट पहले पेंटर थे जिसने इस डायकोटोमी को तोड़ा था। उन्होंने एक पाइप पेंट किया और कहा दिस इज नॉट ए पाइप, विच इज ट्रू। दिस इज नॉट ए पाइप, या दिस वाज द टाइटल। अब अगला सवाल एक आगे, अब कौन सा पेंटर आपको बहुत पसंद है, बहुत खास तौर से, जो कि आपको लगता है कि उसके बारे में कुछ बात जरूर करनी चाहिए? बहुत सारे पेंटर हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत दुनिया रची है। एक्चुअली वो प्रस्तावना है उन लोगों की कि मैं दुनिया को ऐसा देखता हूँ। तो जैसे लियोनार्डो दा विंची है, उन्होंने बताया कि भाई हम दुनिया को एक लेंस के थ्रू देखते हैं। आँख को उन्होंने लेंस की तरह देखा और उसको, इस प्रस्तावना को तोड़ने में 500 साल लगे। पिकासो आया और पिकासो ने आकर के कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं। तो उसने क्यूबिज्म से शुरू किया, तो उसमें फॉर्म गायब हो गया। तो उसने अपने एक ऑब्जेक्ट को कई जगह से देखने को एक साथ पेंट कर दिया। तो नाउ यू डोंट फाइंड द रियलिटी इन इट, सो कॉल्ड रियलिटी। जिस रियलिज्म की प्रस्तावना लियोनार्डो ने रखी थी, उसको ब्रेक करने में 500 साल लगे। एक पेंटर आया, उसने बिल्कुल कंप्लीटली छिन्न भिन्न कर दिया। तो डेविड हॉकनी ने बहुत सुंदर बात कही कि पिकासो ने पश्चिम को 2 आँखों से देखना सिखाया। अभी तक हम लोग एक ही आँख से दुनिया को देख रहे थे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लाइव इवेंट्स की बात मैं आपसे कर रहा था कि लाइव इवेंट्स कैसे पेंटिंग को पर असर डालती है। मुझे पिकासो की वो पेंटिंग वीपिंग विमेन जो सीरीज है, उसमें पिकासो के लाइफ इवेंट्स तो बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। एक तरफ स्पेनिश सिविल वार, एक तरफ उसके पुराने ब्रेकअप्स, या फिर उसका जो डोरा मार से जो इश्क चल रहा था, वो सब उसमें सारी चीज़ें उस सीरीज में आई हैं। इस पे आपकी कुछ राय चाहेंगे? हाँ, तब फिर आपके लाइफ पे आएंगे उसके बाद। हाँ, ये सब हम उसके साथ जोड़ लेते हैं, मगर ये जोड़ना जो है वो उस चित्र के बनने के बाद है, उसके पहले नहीं है। जब वो चित्र बन रहा है, जैसे गैरनिका उन्होंने पेंट किया, तो वो गैरनिका जो गांव था उस पर जो बम्बार्डिंग हुई, उससे उन्होंने देखा नहीं था। उन्होंने तो पेरिस के अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी कि भाई इस हमारे गांव में ये बम्बार्डिंग हुई, एक प्रैक्टिस हुई बम्बार्डिंग की। तो उससे दुखी होकर के ही पेंटेड गैरनिका। मगर जब आप पेंटिंग देखते हैं, आपने देखी होगी, मैड्रिड में लगी है वो जी, इससे वन ऑफ द वंडरफुल पेंटिंग, उसमें उन्होंने एक रूढ़ी को भी तोड़ा है। उसके पहले तक ये था कि युद्ध और प्रेम के जो चित्र होंगे उसमें लाल रंग होगा। वो गैरनिका पेंटिंग आप देखते हैं तो उसमें पूरा ब्लू और ब्लैक में पेंटेड है वो। तो उसने लाल रंग को टच तक नहीं किया और युद्ध पर एक खूबसूरत पेंटिंग करी। नहीं, वीपिंग विमेन सीरीज के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, वो उसके शुरुआती दौर के काम है और उसमें उसने बहुत सारी तरह के इस तरह के चित्र बनाए हैं जिसमें रोज़मर्रा के लोगों के साथ जिसमें उसका मेल मिलाप होता है और मिलना होता है। तो ये सारे जो हमारे सक्सेना सर जो हमारे प्रिंसिपल थे, वो हमें बोलते थे कि अगर तुम कचरा भी पेंट करोगे तो उसको सुंदर पेंट करना होगा। तो जो वीपिंग विमेन है,
they are not exactly weeping in the painting. The emotion of these women are there. चलिए अब एक सवाल के बाद हम लोग फिर अब आपका बाद में आऊँगा, लेकिन एक छोटी सी बात कि आपके लाइफ में आप कभी स्ट्रेस में रहे और आपने कोई खास पेंटिंग की, ऐसा कोई एसोसिएशन आपको याद आता है और उसके बाद आपने कंफर्टेबल फील किया? मेरे लाइफ में जब भी कोई ऐसा स्ट्रेस का मौका आता है या ऐसा कुछ होता है कि आप परेशान हो और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तो कविताएं और कहानियाँ, उपन्यास, वो मेरी मदद करते हैं मुझको पाने के लिए। अच्छा, फिर आपके पास आऊँगा कुछ और भी बातों के लिए, लेकिन उसके पहले हम लोग आते हैं मनीषा जी से कुछ सवाल शुरू करें हम लोग। मनीषा जी के बारे में जैसा कि मैंने जिक्र किया था, स्वप्नपाश, जिस उपन्यास का स्वप्नपाश का कवर अभी दिखाया जा रहा था, तो स्वप्नपाश से बात करते हैं। स्वप्नपाश में जो कैरेक्टर है, जो प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट को स्किज़ोफ्रेनिया है और वो उपन्यास उसी की पूरी ज़िंदगी है। तो मैं सबसे पहला सवाल ये कि मनीषा जी, कि आपके जो नॉवेल्स में इतनी विविधता है, इतने तरह के कैरेक्टर, एक बार जब आप शुरू करती हैं मल्लिका लिखना, तो जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के आरंभिक बड़े रचनाकार हुए और जिन्होंने हिंदी को स्वरूप दिया, उनकी प्रेमिका की कहानी। जब आप त्रिमाया में आते हैं तो 3 ऐसे चित्र, पंचकन्या में मिथोलॉजिकल कैरेक्टर से वो आज से जोड़ करके चीज़ों को डिपिक्ट करना, तो इतना बड़ा जो आप रेंज क्रिएट करती हैं, आप अपने पात्रों का चुनाव कैसे करती हैं? पात्र आप तक आते हैं, आप उन तक जाती हैं? दरअसल विनय जी, जब भी मुझसे ये कोई पूछता है ना कि क्या तुम किसी को देख के नावल लिखती हो, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ नहीं, मैं उन पे नावल लिखती हूँ जो मुझे देख के छुपते हैं। तो हमेशा यही होता है कि वो जो चीज़ें मुझसे छुपी हैं और मुझ में उत्सुकता जगा रही हैं, जैसे कि अगर मैं सिज़ोफ्रेनिया शब्द की ही बात करूं, तो ये मेरे सबसे पहले उपन्यास में आया था ये शब्द, और इस शब्द का पूरी तरह अर्थ भी मुझे नहीं पता था, लेकिन जब ये दिमाग में 2-3 बार आया तो मुझे लगा कि मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए। तो ये जो शोध है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ बायोलॉजी विषय के साथ, तो एक शोध की जो इच्छा मेरे भीतर रहती है, तो जो छुपा हुआ है, जो मुझसे मैं जिससे अनजानी हूँ, तो मुझे हमेशा ऐसे विषयों में कूदने में मज़ा आता है। जैसे त्रिमाया, मैट्रियार्की पे और मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ मेरे लिए, जब मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ हैं और वो एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो हुआ ये कि हम ज़िंदगी भर जगहों पे रहे हैं। तो जब मैं त्रिवेंद्रम गई तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जानूँ नायर समाज में मैट्रिलिनी का अर्थ क्या था। उसके पहले हम शिलोंग पोस्टेड थे, तो वहाँ पर खासी समाज में मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। हाथी भी वहीं थे, जल्दापारा के आसपास, तो मैंने हाथियों में देखा कि प्रॉपर मैट्रियार्की है। तो इस तरह से जो विषय हैं जो मुझे चुनौती देते हैं कि तुम हमारे बारे में नहीं जानती हो, तो मैं हमेशा उन विषयों को चुनती हूँ जो मुझे शोध के लिए, अपने अंदर कूदने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग साइकेट्रिस्ट लोग हैं और मैं आप सबके सामने स्वप्नपाश की बात कर रही हूँ, तो आज मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि जब आप लोग DSM क्राइटेरिया पे बात कर रहे होते हैं, ऑडिटोरियल डिल्यूजन्स पे बात कर रहे होते हैं, तो तब मैं उन डिल्यूजन्स को क्रिएटिव तरीके से सोच रही होती हूँ। जो आप अपनी केस हिस्ट्रीज़ में लिखते हैं, उनके पीछे एक कोई कहानी होती है, तो उसको मैं सोच रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरी जो एक जिज्ञासा है और एक जो कल्पना है, मेरे अंदर एक साइंटिस्ट भी है और एक आर्टिस्ट भी है, तो दोनों की लड़ाइयाँ भी होती है, तो कभी कभी दोनों हैंड इन हैंड भी चलते हैं। I think psychiatrists are here. So when we talk about schizophrenia, loosening of association is one of the important features. Loosening of association. But when you read Swapnapash, you find a kind of concept, you find a kind of logic, you find a kind of method in that. तो मनीषा जी, है ये कि हमें जो मरीज़ मिलते हैं वहाँ पे लॉजिक नहीं दिखता है, वहाँ पे रीज़न नहीं दिखता है, कि आपके कैरेक्टर में पूरी की पूरी एक कहानी दिखी है उस तरीके से, और हर चीज़ के पीछे एक न एक एसोसिएशन, एक जुड़ाव रहा है। तो क्या ये राइटर के लिए एक तरह से कंपल्सन है कि वो उसको उसमें घुसना था?
दरअसल मुझे क्या लगता है कि जब आप लोग सुन रहे होते हैं और जो हम कल्पना में जी रहे होते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं हम तो कनेक्शन ढूंढेंगे, एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक कल्पना का दूसरी कल्पना से निश्चित तौर पे एक कनेक्शन रहता है। और जिस तरह से आप लोगों ने सिजोफ्रेनिया को देखा कि ये एक सच और झूठ के बीच का डिफरेंस मिट जाता है, लेकिन मेरे लिए ये है कि उसे सच और झूठ के इस डिफरेंस का पता है, लेकिन वो मजबूर है उसे चुनने के लिए जो कि झूठ है। और आप लोगों के साथ ये होता है कि आप जिस ऑडिटरी डिल्यूजन और ब्लैंटेड अफेक्ट्स के बारे में और रेफरेंस से टूट के उसके सोचने के बारे में सोचते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि वो जिस अवास्तविकता को वास्तविक समझ रहा है, तो ये उसकी अपनी वास्तविकता है, ये उसकी अपनी ट्रेन है जो इस गति से चल रही है कि उसे बाहर दिखना बंद हो चुका है, लेकिन ट्रेन तो चल रही है। ये सच्चाई है कि ट्रेन तो चल रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने वो पीछे साइकोलॉजिकल कनेक्शन ही नहीं, उसके रिलेशनशिप्स के कनेक्शन, उसके माँ के बहुत बड़ी आर्टिस्ट होने के कनेक्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के कनेक्शन इसमें जोड़े हैं जो उसके ऊपर असर डाल रहे हैं कि उसे क्या चुनना है। हो सकता है ये कोई केमिकल लोचा हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी भी साथ में कहीं ना कहीं चल रही होती है जो इस केमिकल लोचे को एक उत्प्रेरक का या एक कैटलिस्ट का काम दे देती है और वो भावनाएं उभर के आ जाती है, मेरे हिसाब से है। नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात आपके उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट में ये भी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा जो हम लोग साइकियाट्री में कहते हैं अपने पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से फैमिली से आया है। तो अगर कोई आर्टिस्ट फैमिली से अगर आ रहा है, कोई अगर मदर फादर आर्टिस्ट हैं, तो कुछ उसके लाइफ में आर्ट के कंपोनेंट्स आएंगे, उसका घर में कुछ होगा। फिर उसके बाद अगर साइकियाट्रिक टॉर्चर्ड फैमिली है, तो टॉर्चर्ड फैमिली का भी इफेक्ट दिखेगा उसमें। मेरा ख्याल है कि आपका जो उपन्यास है उसमें जो उसके पेरेंट्स हैं वहाँ पर स्ट्रेन रिलेशनशिप हैं, दोनों में अच्छे संबंध नहीं हैं और उसका असर भी पड़ा है बच्चे पे। लेकिन आप उसके जो डिल्यूजन्स, जो आपको लग रहा था कि क्या डिल्यूजन होना चाहिए, तो आप डिल्यूजन के प्रोसेस तक कैसे पहुंची? दरअसल क्योंकि एक आर्टिस्ट परिवार से है तो उसको हमेशा रंग दिखते हैं, उसको हमेशा बहुत रंग बिरंगे कीड़े दिखते हैं और उसको दिखती है आर्टिमीजिया। क्योंकि वो दरअसल मैं इस बात को वहाँ से शुरू करूँगी कि ये प्लॉट मुझे कैसे मिला। हम लोग बिल्कुल एक जंगल में पोस्टेड थे, मेरे हस्बैंड और मैं उनके साथ थी और बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे थे, तो हम दोनों ने वहाँ घर नहीं लिया, तो हम लोग बैचलर्स के साथ में मेस में ही रहते थे। तो हमारे पड़ोसी थे एक डॉक्टर साहब, वो भी फोर्स्ड बैचलर थे। फौज में अगर फोर्स्ड बैचलर कहें तो शादीशुदा हैं, लेकिन नौकरी ने आपको बैचलर बना रखा है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीक्षित वहाँ पर थे, ग्रुप कैप्टन दीक्षित। तो उन्होंने कहा, मनीषा तुमने कभी सिजोफ्रेनिया पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ये शब्द तुम्हारे नावल में मिलता है। तो उन्होंने एक ऐसी केस हिस्ट्री बताई शॉर्ट में 3 लाइन में कि एक लड़की थी जिसको लगता था कि वो उसके साथ रेप हुआ है और उसने आत्महत्या कर ली, और बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला वो वर्जिन थी। तो इस चीज़ ने मुझे हिला दिया और तब जाके जब मैं रात भर सोचती रही कि उसका सच क्या था, क्या वो सच में डिल्यूजन में थी या वो ऐसा महसूस कर रही थी, या उसके परिवार में ऐसा बार बार ये चीज़ें डिस्कस की जाती थी, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न आधुनिक परिवार से थी जहाँ पे पिता अभिनेता है और माँ डांसर है। तो उनके यहाँ ऐसी महफिलें जमती थी जहाँ ओपन सेक्स पे बातचीत होती थी। तो निश्चित तौर पे एक छोटा बच्चा है तो उसकी मानसिकता पे एक असर होगा। तो वहाँ से ये कहानी जन्म लेती है कि गुलनाज फरीबा की जो भ्रम थे वो उतने भी भ्रम नहीं थे, उनमें कहीं ना कहीं एक अवचेतनात्मक सच्चाइयाँ थीं। तो उन अवचेतनात्मक सच्चाइयों से जोड़ के मैंने इस उपन्यास को लिखा। और जब मैंने आर्टिमीजिया को लिया, जब क्योंकि इसमें एक रेप आया है, तो आर्टिमीजिया एक इटालियन स्त्री थी जिसके ऊपर रेप का, जिसने पहली बार रेप की शिकायत की थी और पूरा का पूरा उसके लिए एक कोर्ट लगी थी। और उन दिनों जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी वहाँ पर ये होता था कि रेप विक्टिम वो नहीं है जिसने रेप किया, रेप विक्टिम वहाँ पर वही है जिसका रेप हुआ है, उसे प्रूव करना है कि उसका रेप हुआ है। और वो सारे नन्स आके और उसको चेकअप करती थी। तो वो जो आर्टिमीजिया का ये सब था, और ऐसा नहीं है कि गुलनाज फरीबा को आर्टिमीजिया के बारे में नहीं पता था, क्योंकि आर्टिमीजिया
पेंटर भी थी, क्योंकि गुलनाज फरीबा ने पेंटर होना चुना, तो उसके पूरे जहन में आर्टिमीजिया एक भ्रम बन के चलती है। आर्टिमीजिया लगातार उसके साथ बनी रहती है। तो विनय जी, मैंने जब ये देखा कि पहला रेप का जो कोर्ट लगी थी और कैसे वहाँ पर फ्लोरेंस में जब आर्टिमीजिया के ऊपर ही, क्योंकि आर्टिमीजिया के फादर बहुत बड़े फ्रेस्को पेंटर थे और किसी एक और पेंटर ने ही उसके साथ रेप कर दिया था, तो जो कोर्ट लगा था उस कोर्ट में आर्टिमीजिया के ऊपर ही आरोप आए थे। तो उस पीड़ा को और गुलनाज फरीबा की पीड़ा को, दोनों को जोड़ के मैंने उसके हेल्यूसिनेशन में आर्टिमीजिया को इंट्रोड्यूस किया था। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये किताब कैसी है। आपको इस किताब में आपको इटली मिलेगा, इस किताब में आपको हिंदुस्तान मिलेगा, आर्टिस्ट फैमिली, स्किज़ोफ्रेनिया, क्रिएटिविटी एंड स्किज़ोफ्रेनिया के लिंक्स पे सवाल मिलेंगे। बट एक बड़ी अनोखी बात इस किताब में है, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी में बाउंड्री वायलेशन पे हम लोगों ने वी फॉर्म्ड अ कमिटी ऑन डिसाइडिंग व्हाट इज बाउंड्री वायलेशन इन साइकियाट्री, एंड दिस वाज डन इन 2019 फॉर द 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी पब्लिश्ड रिपोर्ट इन आई थिंक 2020 ऑन द 2021 ऑन दिस। लेकिन मजे की बात है कि इन दिस बुक इन स्वप्न पाश, मनीषा कुलश्रेष्ठ had raised the issue of boundary violation. Actually, what happened when the novel was being written, I received a phone call from Manisha Kulshrestha ji that I have just finished a novel and I have read. She told me on phone call that I have read your some of books and I'm interested to discuss this novel with you and give me suggestions if I can do some modification and all. And after that, I wrote the blurb of the book. So that was our first introduction. तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसका बाउंड्री वायलेशन का, वो बड़ा, मैं जब उससे गुजरा तो मैंने कहा कि बिकॉज क्या होता है ना कि अपना डिफेंस मैकेनिज्म सामने आ जाता है। तो आई सेड कि भाई डॉक्टरों को आपने बड़ा बुरा कर दिया कि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो हम बाउंड्री वायलेशन की बात नहीं सोचते हैं, हम बड़े प्रेम से पेश आते हैं। तो मनीषा जी सेड नो, आई हैव रिटन दिस विल बी इन बुक। तो बाउंड्री वायलेशन वाले इशू पे मनीषा जी आप कुछ बताएं। बाउंड्री वायलेशन दरअसल अगर इसका तो फ्रॉइड ने भी जिक्र किया है, इमोशनल ट्रांसफरेंस। अगर हम बात करें कि अक्सर मरीज़ को अपना डॉक्टर जो उसको आराम से सुन रहा है उससे उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। आप सबने महसूस किया होगा कि जिसको इमोशनल ट्रांसफरेंस कहते हैं, चाहे वो मेल पेशेंट हो चाहे फीमेल पेशेंट हो, अगर आपने उसको प्यार से सुन लिया तो कहीं ना कहीं आप उसके दिल का थोड़ा सा टुकड़ा चुरा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि गुलनाज फरीबा को घर पे कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसके जो डॉक्टर हैं वो उनसे प्रेम करने लगते हैं, उसको भी ऐसा लगता है कि वो भी प्रेम कर रहे हैं। और ऐसा है कि वहाँ पे डॉक्टर को भी उसके प्रति थोड़ा आकर्षण तो है, तो वो जो आकर्षण है उसको वो डिनाई करता है और उससे बहुत दूर चला जाता है। तो इसमें बाउंड्री वायलेशन वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। डॉक्टर ने अपनी गरिमा रखी है और गुलनाज फरीबा को अपने से नहीं, the most beautiful thing about this in the novel is that doctor does what exactly he should do, and what doctor does there, psychiatrist what does, he discusses, he rather kind of confession he does in front of one of his colleague and tells that I'm passing through this turmoil, so I'm referring the case to you. And Gulnaz Fariba after that is being treated by some another psychiatrist. So beautifully depicted, and the book has a message. Okay, the book is tragic, but tragedy is part of life. I'd like to read 2 lines about death in this. गुलनाज, तुम बहुत थक गई हो, मैं जानती हूँ तुम्हें आग के 7 रंग पसंद है ना। मृत्यु भी एक अभिव्यक्ति है, कलाओं में बहुत सुंदरता से उभर कर कितनी रूमानियत से, कितनी पवित्रता से अवसान आता है। इस भाषा में, इतनी सुंदर भाषा में ये उपन्यास लिखा गया है। इसकी प्रतियां हैं, आप मौका निकाल करके आप उसको देखें। और
हम लोग और भी सवाल करेंगे कुछ इनसे, मनीषा जी से, और इनकी एक बहुत अनोखी कहानी जिसको हम लोगों ने पब्लिश की है, मौसमों के मकान सुने हैं, थोड़ी उस पर भी बातचीत करूंगी, क्योंकि हम सबके लिए, हम जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके लिए उस तरह की कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक तरह से, बाकी वो ब्रेक के बाद मिलते हैं उस पर, और तब हम अभिषेक की तरफ आते हैं। अभिषेक, before I start anything, I'd request you to recite the poem Grammar of My Body. Okay. Okay. Yeah. Oh, I haven't. I think I haven't won. Yeah. Hi. So basically, to give a little background of what it's all about, I have chronic illness and disability, and I became disabled later in life. And my book, The Grammar of My Body, is a memoir essay book on living with chronic illness and disability. So this is a poem called The Grammar of My Body, which was written as part of a performance which I do. It's called Dear Aphrodite. That's a performance I do, one-act performance. But yeah, let's start with the poem. The grammar of my body is different. Sentences are spread all over. Full stops come without warning. Past, present, and future seem indifferent. An emptiness resides before words that long for a prefix. You keep bringing different molds, teaching me what is right, what is wrong, how I am just ordinary, how extraordinary. Why don't you do this? Why don't you do that? Why don't you hide yourself? Hide your grammar in someone's essay. Hide from yourself? Just hide? I know I'm different. Then you come around, holding the mirror of your society, preaching the norms of normality. And then it seems, maybe there is nothing wrong with the grammar of my body. It is you bound by the syllabus of ableism who is unable to read me. Are you able to read me? No. And this is also not a traditional poem. This is a spoken word poem, and the original is a Hindi poem, which makes much more sense. So I think this poem is a kind of message. But the important thing in the book, and I'd like to discuss about this, Abhishek, that he in his book defies the inspirational model of some kind of disability. Inspirational model. I request Abhishek to discuss about It's this. very interesting sitting in a room full of doctors, because you wonder whether you are a patient, you are an anecdote, or you are a writer, because it can get very confusing if you are not a doctor yourself. And that's why it's useful. The whole rejection of the inspirational module is important, because even doctors, there are a lot of psychiatrists who have talked to me after the book, and thanks to a lot of my friends, including Asta, who has shared the work. And it is interesting because they are also looking for a story, because I'm sure when patients come to you, you are looking for stories of overcoming, like someone overcoming something. But I'm sure all of you have also experienced patients who can't overcome anything, who live their lives as persons with disabilities or mental illness or mental health throughout their life. And I think one of the things you realize being a person with disability, that your embodied self never leaves you. So no matter how much of a claim that I go around in the world and claim victimhood, or say, I've achieved this despite disability, the whole despite disability narrative, it's hugely problematic, because okay, I wrote a book, but when I go back to my home, I still face the same inaccessible infrastructure. When I go around, I feel the same kind of stigma. Nothing changes in my life. And that somehow shaped my idea of disability activism too. I don't want to apply for the Rashtrapati Sarvashresth Divyang Award.
because it is antithetical to the idea of disabled people. Of course, people want to point out to a disabled person and through only their achievements, but disabled people also have right to be mediocre. Every disabled person can be mediocre. They can be just people. That should not rob them of their dignity. But in our society, what happens if you are mediocre, you don't have any respect anyways, but if you are disabled and mediocre, suddenly, and that also varies from disability to disability. There are lots of disabilities who don't have even the bodily privilege which I have to come here and speak. So it becomes a huge cycle of, picking out, cherry picking who the disabled ideal is. And that's why it was very important for me to write about not trying to fit into that inspiration module. That book, Grammar of My Body, is not about comforting one. What happens when we write something, when you write poetry, you feel some kind of comfort within you. And when you do some painting, you're in stress and you feel relieved. You write some story, you feel relieved. But this book is unique in this sense that it's not about comforting oneself. Rather, it's telling people, telling society that what changes needs to be carried out in society. Abhishek, your comments. Yeah, I think people, what happens is everything is, very performative. Empathy we were talking about earlier in the earlier session, how empathy people are enacting empathy. I think people are just performing empathy because particular experiences of gender, age, disability, caste, everything is very embodied experience. And if you don't have that bodily experience, then I don't think you can relate to it. You can somehow project, that I am relating to it. People are, in an ideal world, we would want everyone to be empathetic, but that doesn't work like that. What happens is that when people meet a disabled person or a person who is disenfranchised, they project their own idea of what they should be, that they are a good person. And that projection is what leads to the performance of, that empathy. And that's why the whole discourse becomes about the whole discourse becomes about able-bodied people in a way, because, and for me, the important thing is you have to say, I don't want to do the next step, take the next step. I don't want to be an activist for life. It's very exhausting. I want able-bodied people to change, not I don't want to change. I have changed enough. I have appealed to able-bodied people enough that, okay, this is my disability, pity me or empathize with me or whatever me. But able-bodied people have to go do the work themselves, learn from books. There are enough books out there. It's not my book is not the first one. There was Firdaus Kanga writing, trying to grow in the 80s, and he had brittle bone disorder. Then there was Margarita with the one which was made into Margarita with the straw. So there are films out there, but it's a very niche thing. My book is a niche thing. My publisher's some niche thing, and which is the point. It will always be a niche thing, and even within the niche, are people really trying to connect the dots, or are they projecting their own thing, that how they want to be seen in the society? Because in today's social media world, everyone wants to be, like I identify with every victimhood, every shade of victimhood, and disabled people often become the last shade of victimhood that they identify with. So I know that disabled person from social media, so I can talk about them, and that becomes the regular thing with people, and that's why that needs to be not taken very seriously. When we talk to our some relatives of patient outside clinic, and when people reach to us telling few things about doctors, there's always we receive lots of complaints. The doctors don't talk very in a good words, and at times we feel humiliated like that. And at times I feel that I must say, doctor, mind your language. Do you think in your life, because we are doctors, not majority of here are doctors, and did you ever feel this, that I must say
Doctor, mind your language. Yeah, I think doctors are also shaped by their own experience. Yes, I think, you know, a lot of, like we were talking about medical humanities before this, is a, you know, a disability. There are now colleges with teeth disability. It is an attempt to change that idea of what is a doctor is a human, should also be a human first. But it becomes very difficult for that. You know, if you are in a corporate hospital and the doctor is just walking from bed to bed and one then it becomes very difficult for the doctor to really empathize with the patient. And it really leads to very silly things. For example, I had COVID and I was in the ICU, and so one junior doctor came and said, इनको diabetes है. So I said, आपने केवल इसलिए बोला क्योंकि मैं मोटा हूँ ना, आप check करो मेरा नहीं है diabetes. You know, so the whole idea, they don't have time. I don't blame him, you know. They don't have time. But what a patient feel if you have that conscious, most people don't feel that they have been wronged by a doctor because they don't have the entitlement to feel wrong. They are going there because they want their lives to be saved, and they are desperate, and that's why they can't even complain. People like us who have certain privileges and we have a vocabulary, so we can complain that doctors should be more empathetic. But I understand in many places that in rural Bihar, we don't expect, like I have been part of the public health infrastructure, I have worked in it, and I know there is just no space for empathy at times. But from the ground level of it, people are just open to the idea that different human beings have different, you know, for example, a lot of fat people who go to doctors often complain that everything is reduced to I'm fat, and that's why I'm having this problem. Which is fine, might be one of the reasons that they have some of the problems. But that should not be the opening and closing line for a patient, because that patient, a lot of obesity is an epidemic, a lot of patients go to, they are going because they want some consolence. They don't want every bitter pill, that the doctor can offer. So go easy on people, especially a lot of psychiatrists I know tend to also, because they see so many people, there's always a trend going on, there are some people, there's a trend of people. Right now there's a flood of people on social media distributing psychiatric therapy knowledge. Everyone is a therapist and everyone is pretending to be a therapist. So there's a huge crisis and everyone is self-diagnosing. So disability, one of the biggest things is, I must self-diagnose this. And it becomes such a huge problem because we want to accommodate everyone in the disability ecosystem. But it becomes so difficult because there is a disabled person who clearly is suffering every day. And then someone who is much more privileged comes as a self-identified and occupies that space. So it becomes a problem within the space too. I think एक मिलती जुलती बात इससे, मनीषा जी की तरफ मैं बोल रहा हूँ, मैं शायद पहली बार इनसे ये पूछने जा रहा हूँ। जब पहली बार फोन कॉल इनका आया था तो उसमें एक साइकियाट्रिस्ट का एक जगह जिक्र आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज व्हाट हैपेंस इफ a character in a novel is a psychiatrist and you are a reader, you try to identify, it's natural, you just get identified at your own level with the character. तो मैंने कहा कि वो आपने जो साइकियाट्रिस्ट बनाया है मनीषा जी थोड़ा दोस्त टाइप का है, सो थोड़ा उसको ठीक कर, उपन्यास में कुछ सुधार करना, उसको थोड़ा अच्छा आदमी नहीं बना सकती हैं। तो द आंसर फ्रॉम मनीषा जी वाज नहीं, आप कुछ और बात करिए। आई डोंट नो, मे आई रिक्वेस्ट मनीषा जी की वो बात क्या थी, मैंने आज तक पूछा नहीं है, क्योंकि आप एक लेखक हैं और लेखक का जो मन है, लेखक का जीवन है, वो एक सीमा तक समाज की संपत्ति भी होता है। तो क्या कुछ इस वाक्य के पीछे कुछ था क्या? आपने मना कर दिया था उसको थोड़ा भला करने से। मेरा साइकियाट्रिस्ट उसमें किताब में भलाई है। हाँ। पर मैं अगर बात करूँ एक साइकियाट्रिस्ट उसमें है ऐसा। हाँ, एक साइकियाट्रिस्ट उसमें ऐसा है। अगर मैं बात करूँ 2 समय की, तो मैं भी पोस्टनेटल डिप्रेशन से गुजरी हूँ, और क्योंकि फ़ौज में कर्नल कौशल मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट से याद करती हूँ, तो तब साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब बहुत ख़तरनाक होता था, और आपके बारे में
आपकी सोसाइटी में बातचीत हो सकती थी, ओ शी इज़ गोइंग टू, शी इज़ रेफरिंग टू साइकेट्रिस्ट। तो मैं उस समय गई जब मेरी बेटी बिल्कुल गोदी में थी और मैं पोस्टनेटल डिप्रेशन से गुजर रही थी, और तब बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। नाउ शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ 30+, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि पोस्टनेटल डिप्रेशन भी कुछ होता है। तो हमारे यहाँ कर्नल कौशल थे, शायद अब वो अमेरिका रहते हैं, US UK में। तो वो समय था जब वो बिल्कुल साइकेट्रिक काउचेस होते थे, और वो जब भी मैं उनके उसमें हॉस्पिटल जाती थी और मैं कहती थी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, वो कहते कितने साल की है? मैंने कहा 27, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे सोच रही हो, अच्छा शुरू हो जाओ। तो वो जो ब्ला 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 मैं उनसे बोलती चली जाती थी और वो शांति से सुनते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे कर्नल कौशल ने जिस तरह से सुना होगा उतना अंशु बैठे हैं शायद सामने, उन्होंने भी नहीं सुना। और मैंने अपने जीवन की सारी जितनी भी उलझनें थी ब्ला 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 करके उनके सामने पेश कर दी थी। उसके बाद ठीक 15 साल बाद मैं फिर से साइकेट्रिस्ट के सामने बैठी हूँ और मुझे भीषण राइटर्स ब्लॉक आया हुआ है, और मैं उनसे पूछती हूँ क्या मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है? तो कहते हैं हाँ, ये लो दवाइयाँ। उन्होंने इतनी सारी दवाएं पकड़ा दी, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। तो मुझे लगता है कि ये जो एक लंबे समय का डिफरेंस आया और दवाओं को काउंसलिंग का सब्स्टिट्यूट मान लिया, तो मुझे लगता है कि मुझे वो शौक लगा था विनय जी। और जब तब मैं स्वप्नपाश लिखना शुरू कर चुकी थी, तो मुझे लगता है कि वो जो एक डिफरेंस था मैंने उसको महसूस किया। तो हो सकता है एक साइकेट्रिस्ट जो है मेरा बहुत भला है, और एक है जो बिल्कुल दामन छुड़ा के भाग जाता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। दोस्तों, आप सबके लिए मैसेज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना ही अक्स पेशे नज़र देखते रहे, आईना रूबरू था जिधर देखते रहे। हम अपने क्लिनिक में जैसे भी काम कर दें, जितना पॉलिश जैसे भी सूट टाई पहन के पहुँच जाएं, लेकिन आपको हमारे लिए मैसेज ये है कि हमें भी आईना देखने की ज़रूरत है। और आईने चारों तरफ है, हम ही नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि वो तो आईना है, क्या देखना है उसको, आई कैन मेंड दैट मिरर, उसको मॉडिफाई कर देंगे, बदल देंगे, पेंट कर देंगे, कुछ और। के लिए एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पर। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कुछ कर लेती हो? मैंने कहा कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड दिन भर टूर्स पे और वहाँ रहते हैं, मैं बच्चे पालती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। कुछ तो करती होगी। फिर मुझे याद आया मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं अपनी कल लेके आना। मैं उनके पास अपनी कविताएं लेके गई, मैंने उनको कविताएं सुनाई तो उन्होंने कहा अच्छा लिख लेती हो। और ग्रेजुअली जो मैंने अपने आप की तरफ देखना छोड़ दिया था, मैंने बहुत बुरी तरह रहना शुरू कर दिया था, सडनली मैं उनके पास जाने के लिए तैयार होके जाने लगी। और आज मैं पूरा श्रेय जो अपने लेखक होने का देती हूँ, मैं कर्नल कौशल को देती हूँ। आज जहाँ भी है मेरा सलाम उन तक पहुँचे। मैंने उनको ईमेल भी किया था विनय जी से ईमेल आईडी लेके कि आपकी वजह से मैं आज एक सक्सेसफुल लेखक हूँ, क्योंकि अगर आपने उस दिन मेरी डायरी नहीं मांगी होती कि कविताएं कल लेके आना, तो शायद कभी भी मैं अपने अंदर नहीं झांकती कि मैं कुछ कर सकती हूँ। How creativity can change a person, how creativity can make a person productive, how creativity can make a person nationally, internationally reputed. Manisha Prasad has got lots of awards out of India as well. Her books has been translated in Ukrainian, Dutch language, English language. Mallika, the novel on the love story of Parthendu Harishchandra, has been translated in English recently, and Bloomsbury is going to publish. Writers are working on this Swapnpash also in Ukrainian, and some English translation is also awaiting. She just finished one novel, and it's going to be announced soon, and it will be published next year on. It's a kind of travel romance in which Turkey. She has traveled Turkey last year before last or last year? 2024, and a reader can see almost majority of Turkey in that novel and read all the stories and human emotions as well. Turkey within you and Turkey outside you, you can visualize in that. So this epitomizes this meeting. Now, Akhilesh ji,
कुछ कहानियां सुनते हैं आपसे, एक दो कहानियां मकबूल फिदा हुसैन साहब के बारे में। क्योंकि मकबूल फिदा हुसैन के बारे में उनका जो जो डेंटल सर्जन के साथ जो एक मामला था पेंटिंग वाला, जो दुबई वाला किस्सा सुनाइए आप। कौन सा वाला? दुबई में जो उनके दांत में दर्द था, मकबूल फिदा हुसैन का एक डेंटल सर्जन था, क्या हुआ था वो किस्सा? जलेबी वाला, हाँ दोनों। पहले तो मैं मनीषा जी की बात पर वो कुछ कहना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि जो उपन्यास में कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बुरा है, तो वो वास्तविकता समाज की वास्तविकता नहीं है, वो उस उपन्यास की वास्तविकता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो समाज को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो अपनी तरह से अपने उपन्यास में एक तनाव पैदा कर रहा है जो उस उपन्यास के लिए ज़रूरी था। तो ये एक मसला वो है, जो भी कलाकृतियाँ हैं उसकी जो रियलिटी है उसकी अपनी रियलिटी है, वो समाज की रियलिटी से मुतासिर नहीं है। दूसरा ये आपने जो कहा वो मकबूल फिदा हुसैन वाले। दुबई में हम लोग हुसैन साहब के साथ थे और बाबा ने एक कैनवास निकाला और वो पेंट करने लगे। तो उस वक्त मैंने उनके पाँव के फ़ोटो खींचे थे। वो जीवन भर नंगे पाँव चलते रहे और इतने कोमल, इतने सुकुमार, इतने सुंदर उनके पैर हैं, वो तलवे। तो मुझे देख कर के लगा नहीं कि वो इतनी कठोर ज़मीन पर इतने सालों से वो उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ी थी। मुक्तिबोध उनके एक कवि थे, उनके कवि मित्र थे, उनके कवि मित्र बहुत सारे थे, उनमें से एक मुक्तिबोध भी थे। उनकी शव यात्रा में उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ी थी, उसके बाद से उन्होंने कभी चप्पल पहनी नहीं। तो वो पेंटिंग उन्होंने पूरा किया और फिर उन्होंने कहा कि चलिए उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालने को, वो पेंटिंग लेके हम लोग गए और वो बोली हमारे डेंटिस्ट हैं, इन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा है और बहुत उनके कारण मेरे को बहुत मदद हुई है। और वो पेंटिंग उनको भेंट करने गए वो। तो जब वो उन्होंने पेंटिंग भेंट करी तो जो उनकी पत्नी थी वो इतना आह्लादित हो गई कि वो उनके घुटने पे सर रख के पूरे समय रोती रहीं। उनको विश्वास नहीं हुआ कि हुसैन साहब अपनी एक पेंटिंग भेंट करने आए हैं, जबकि हुसैन साहब की ऐसी आदत रही है कि वो अपने जितने भी मित्र हैं या जितने भी पसंदीदा ऐसे लोग हैं उनको अपने चित्र ऐसे ही दे दिया करते थे। तो वो एक बहुत ही शाइस्ता आदमी थे और बहुत ही, मैंने देखा इतने मौक़ों पर जब आर्टिस्ट लोग बैठे हैं पार्टी में, ड्रिंक्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है, अब वो सिर्फ चाय पीते थे हमेशा। तो जब वो थोड़े से बहस चालू हो जाती थी, कुछ गर्मा गर्मी बातचीत होने लगती थी, तो वो उठ के चले जाते थे, कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो मैंने एक बार उनसे कहा भी कि आप कभी नाराज़ नहीं हुए क्या जीवन में? तो बोले एक बार हुआ था। वो हुए होंगे कभी, वो मेरे सामने नहीं हुए थे तो मुझे पता नहीं, मगर उनके साथ गुजारा हुआ समय बहुत ही प्रेरणादायी समय है। वो मैंने देखा कि वो 18 घंटे पेंट करते रहे हैं। तो इतना ज़्यादा, रज़ा साहब बहुत अच्छी बात कहते थे, वो भी ऐसे 15-16 घंटे पेंट करते रहते थे। तो रज़ा साहब कहते थे कि ये पेंटिंग जो है एक मुश्किल प्रेमिका है, अगर आप इसको 4 घंटे दे रहे हैं तो वो उसके पास जा सकती है जो 6 घंटे दे रहा है। तो इसलिए जितना ज़्यादा समय हम इसके साथ गुजारें तो वो आपके साथ रहेगी। तो इस तरह की इन लोगों के से बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिलती रहीं। तो वो सब जलेबी वाला क्या? नहीं, जलेबी वाला किस्सा वो एक स्मृति है मेरी। जब हम लोग छोटे थे तो हुसैन साहब जब भी घर आते थे तो सुबह सुबह 6 बजे आते थे, 6 बजे 7 बजे। और वहाँ एक मथुरा वाला मिठाई वाला बहुत ही प्रसिद्ध वो था छावनी में। तो वो उस वक्त ज़माने में जलेबियाँ मिलती थी, टोकरे में दी जाती थी, वो पत्तल बिछा कर के उसमें, तो वो टोकरे में जलेबी लेके सुबह सुबह आते थे और फिर हम सब लोग बैठ के खाते थे। उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि हुसैन साहब मतलब क्या चीज़ है, और वो धीरे धीरे पता चला उनके बारे में। मगर ये स्मृति इतनी साफ है और इतनी बार दोहराई गई। जब भी वो इंदौर में होंगे तो सुबह हमारे घर, मेरे पिता और वो साथ में ही पढ़े हैं, तो वो उनकी एक दोस्ती भी थी उनके साथ, तो वो भी निभाने आते थे वो।
इसके पहले कि मनीषा जी पे आके ख़त्म करें हम उसके नहीं, उसके पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि 20-22 साल मैंने भारत भवन में काम किया, तो वहाँ मैंने उन आदिवासियों को देखा जो जंगल में रहते हैं, और उनका जो संसार एक समानांतर संसार है, जो हमारा एक संसार है उसके समानांतर संसार है, जिसमें उन्हें हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा कि वो जो आदिवासी आते थे, वो गैलरी में जितनी भी पेंटिंग है उनको बड़े ध्यान से देखते थे और उसको पूरी तरह एंजॉय करते थे, कभी पूछते नहीं थे कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने पाया कि उनका देखना जिंदा था, वो जो देख रहे हैं वो देखना जानते हैं। और हम जो शहर में रहने वाले अच्छे पढ़े लिखे और हर तरह से मतलब विशेषज्ञ भी हैं और अपने फील्ड के भी मास्टर हैं, वो किसी भी पेंटिंग के सामने निरुपाय हो जाते हैं कि वो देख नहीं पाते हैं कि इसका सौंदर्य क्या है। मुझे आपकी बात से याद आई, पटना में एक फेमस पेंटर, प्रिंट मेकर, पद्मश्री अवार्डी श्याम शर्मा जी हैं। मैंने श्याम शर्मा जी, ऐसे ही हम लोग थे कहीं पे एक जगह थे, तो पेंटिंग लगी थी, किसी ने पूछा कि मैंने कहा कि यही पेंटर हैं, तो कहा कि आप इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं आप इसमें? उन्होंने कहा कि वही जो आप देख रहे हैं। तो पेंटिंग इज ऑल अबाउट दैट, आर्ट इज ऑल अबाउट दैट, कि जो आप देख रहे हैं वही, बिकॉज आपको देखना है, वो आईना रूबरू है, उसमें आप ही खुद को देखते हैं। किताब है देखने पे, अखिलेश जी की एक समूची किताब है कि देखना, उसमें हर व्यक्ति कैसे उनकी पेंटिंग्स को देखता है। तो वो आप सभी को अगर कहीं अमेज़न पे मिलती है देखना, तो आपका आर्ट देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, ज़रूर खरीदिएगा। एक और बात ऐड कर रहा हूँ किताब के बारे में इनकी। आज वी हैड अ सेशन टुडे बाय विवेक बेनेगल, ऑन न्यूरो साइंस ऑफ ऑ। इनकी एक किताब है, उसका नाम है अचंभे का रोना। हाँ, तो जहाँ पे उस पे 2 लाइन कुछ बताइए। ये अचंभे का रोना ऐसा हुआ, मतलब मैं जब काम करता रहता हूँ या जब और कुछ नहीं कर रहा रहता हूँ तो मोज़ार्ट मेरे उसमें बजता रहता है। तो कई बार मेरे को उसको सुनते सुनते रोना आया कि यार इसने कैसा संगीत रच दिया, अनबिलीवेबल, इस दुनिया का ही नहीं है। तो वो शीर्षक भी फिर पुस्तक का वो पीयूष ने सुझाया कि इसका शीर्षक ही रखते हैं, क्योंकि एक इस अचंभे के बारे में मैंने लिखा अपने आर्टिकल में कि तो एक अच्छी पेंटिंग देख कर के भी आपको रोना आ जाता है। जब मैंने पहली बार मोमा में ले देमोइसेल दी एवेन्यू देखी, तो आई कुडंट बिलीव कि मैं वो देख रहा हूँ। मेरे सामने एक ऐतिहासिक चित्र है, तो मैं देख नहीं सका उसको, और थोड़ी देर मैंने पहले उसको टच करके देखा कि सच में है क्या। फिर उसके बाद देखते देखते अपने आप ही आंसू निकलने लगे। तो वो एक अचंभा होता है, चित्र है या उपन्यास है या कोई संगीत है या कोई नाटक है, वो अपने में एक ऐसी रियलिटी प्रस्तुत करता है जो इस दुनिया की नहीं है। अगर आप उस अचंभे को छू लेते हैं तो वो पेंटिंग आपको समझती है, वो नाटक आपको समझता है, वो कविता आपको समझती है। आखिरी सवाल मनीषा जी से होगा, उसके पहले एक छोटी सी बात अभिषेक से कि आप जो in this book you have written about lots of things, lots of sufferings, and you must the book is available here, and you go through the book. It's a very interesting read. If you go through the book, you will find lots of philosophy, lots of poetry, lots of prose, full of humor. So he enjoyed in writing. A very, very, very fluent writer he is. And Abhishek, how did you develop this format where in Hindi में कहते हैं चंपू, कविता और गद्य मिला के बोलते हैं चंपू काव्य। ये कुल में ये उसको भी क्रॉस करता है, इसमें सटायर भी है, ह्यूमर भी है, पोएट्री भी है। हाउ डिड यू डेवलप दिस फॉर्म? Is it reflection of life, or are you laughing on the life situations, what is around you? What's this? What's the irony behind this? Without some sarcasm and humor, I think it would become a drab for me also, just writing it out. So I often write to amuse myself कि भाई तुम भी थोड़ा मज़े ले लो, ये हो रहा है तो हो रहा है। और आई थिंक पोइट्री के साथ प्रॉब्लम ये है कि
एक तो मेरा क्रांतिकारी एकदम ग्रज था कि यार ये कविता ठीक से छापता नहीं है कोई, तो अब इसके साथ क्या किया जाए, तो प्रोज के साथ चिपका के डाल दिया जाए. तो आई हैव बीन राइटिंग पोएम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. Poems are the reason you heal, as has been said by many people. Ki poems is the reason you heal. You write a poem. I have written poems in an ICU bed where I was recovering from COVID. I wrote a poem about a nurse pricking me with a for an IV, and because that was very interesting to me, but that was also a sign for me that I'm on my way to recovery. I'm conscious, I'm on my way to recovery. So to celebrate little joys like that, you have to write a poem to mark the occasion. So I love writing a poem to just, create milestones out of my life, which others won't acknowledge as milestones. Unique. So this is the message. This is the message for all of us, how we should perceive other emotion, and in our practice, how we can mend our ways and how we should look at the things around us. लेकिन जो एक बड़ा important message है आप सबके लिए कि हमें पढ़ाया जाता है कि when you are taking history of a patient, and so some people say, and there is a kind of myth that don't talk about suicide. This may inspire the patient, instigate the patient to commit suicide. So don't talk. So this kind of thing has been said. Now we say no. Talk about this. There is a story by Manisha Kulstrest, मौसमों के मकान सुने हैं. Abode of the seasons is vacant. ये टाइटल है, वो पूरा एक मिसरा है, एक गज़ल का, एक शेर का एक मिसरा है. उस पर एक नाम है, मैं पूरा वो किताब में वो है. हाँ, शीन काफ निज़ाम जो जोधपुर के बड़े हिंदी के बड़े शायर, उर्दू के बड़े शायर हैं, उनका है कि मौसमों के मकान सुने हैं, लोग दीवारों दर में रहते हैं. तो कैसे आप मौसमों के मकान में कैसे रहेंगे दीवारों दर से निकल करके? और ज़िंदगी कहाँ पे है? तो मौसमों के भीतर है. मौसम जो बाहर है, मौसम जो भीतर है. ये जो कहानी से आप गुजरेंगे, मैं इस कहानी के बारे में मनीषा कुलस्टेस्ट से बात करना चाहूँगा. और मनीषा जी, मेरा ख्याल है कि हमारा आखिरी सवाल होगा. इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं हो सकता है कि एक इंसान आत्महत्या करने के लिए बस तैयार है. एक स्त्री है जो आत्महत्या करना चाहती है. कहानी की पहली लाइन वहाँ से शुरू होती है और कहानी ख़त्म होती है जिसमें दीवारों दर से निकल के वो मौसमों के मकान में जा बसती है. और ये पूरा का पूरा कंटेम्पलेशन है, पूरी सोचने की यात्रा है. वो गज़ब की कहानी है और कहानी से आप गुजरें. मनीषा जी, उसके बारे में आप बताएं कि ये कहानी पैदा कैसे हुई और कैसे ये अगर मैं कहूँ ये कहानी कैसे पैदा हुई, तो ये दिल्ली शहर की जो आपाधापी थी और उसमें सब लोग बहुत व्यस्त रहते थे और मैं 5वीं मंजिल पे रहती थी. तो एक दिन मैं वहाँ खड़ी थी तो जामुनों को टपकते हुए देख रही थी. तड़ से जाके नीचे गिरते हैं और जामुनी रंग फैल जाता है. एक पल को मुझे ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ से कूद गई तो. फिर मैंने सोचा कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा ख्याल भी क्यों आया, क्या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ? ये एग्जैक्टली वही समय था जब मैं दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास गई थी. फिर मैंने सोच लिया कि मुझे खुद को ही संभालना होगा. वो राइटर्स ब्लॉक का टाइम था. तो ये जो कहानी जब मेरे ख्याल में आई तो मुझे ये भी ख्याल आया कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सुसाइड करने के तरीके बताती हैं. तो मेरी जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सुसाइड करने के तरीके ढूंढने के लिए इंटरनेट को खोजती है. उस पर तरह तरह के फैंसी सुसाइड करने के तरीके हैं और वो वहाँ पे कुछ नोट करती है. इतने में एक और बंदा होता है, वो उसको देख रहा है कि इसने अपना नंबर डाला है, ये बार बार पूछ रही कैसे सुसाइड करते हैं. तो वो उसको कॉल करता है. तो मैं नहीं लगता ये मार्केट है सुसाइड करने का, और तो मैं नहीं लगता ये व्यक्ति सच में सुसाइड करने के लिए लोगों को उकसा रहा है. और ये जितनी भी कहानियाँ हैं वो नकली इसी की बनाई हुई हैं. तो तुम प्लीज़ ऐसे मत करो. और तुम जानती हो मैं कितना बीमार हूँ, मेरा पैर नहीं है फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, और मेरे पास एक पपी है जो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, फिर भी उसके अंदर एक जीजीविषा है. जानवर कभी सुसाइड करने के लिए नहीं सोचते. तो एक अजनबी कॉल आता है. वो भी कॉल करती है 2-3 जगह कि जब भी आपके सुसाइडल थॉट आए यहाँ पे कॉल करिए. वहाँ पे कोई नहीं उठाता, लेकिन एक अजनबी फ़ोन करता है. तो इसलिए हमेशा जब होता है ना कि आप डिप्रेस्ड हैं और कोई अजनबी कॉल करता है या कहीं से एक रिंग बैल बज जाती है,
तो वो आपका सेवियर होती है। तो ये कहानी उसी पूरी समूची घटना पे है कि कैसे वो उस सुसाइडल थॉट से निकलकर अपनी पड़ोसन के घर खाना खाने चली जाती। एक छोटी सी कविता इसमें याद आ रही है, बस ये आखिरी क्लोज कर रहे हैं, आस्था जी की तरफ से इंडिकेशन आ रहा है ख़त्म करने का कि एक छोटी सी कविता में बात ये थी कि एक इंसान कहता है कि मुझे मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, तभी माँ ने कहा कि खरबूजा कट रहा है आके खा लो, और वो खरबूजा खाने के लिए नीचे उतरता है और फिर वो खरबूजा और ज़िंदगी में लौट आता है। तो बड़ा थोड़ा सा बड़ा बारीक सा धागा है और ये मैसेज है। तो लिटरेचर ने भी अपने तरीके से वो सब कुछ हैंडल किया है जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं। तो देयर इज़ ए नीड फॉर डायलॉग, देयर इज़ ए नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस डायलॉग एंड Psychotica, this Psychotica is a kind of experiment. We have tried to do few things, very few things. We have started, it's just a beginning. And we promise to ourselves, we promise to you to bring this kind of meeting on yearly basis because World Psychiatric Association permits their members to remain in the section for life. So those, we are Dr. Pavitra is the member, Dr. Astha is member, I am member, Hans Otto here is the member, Tiago is the member. So we all are here and we will continue to carry out this work of interaction across all genres and all disciplines for years to come. So thank you very much for being with us. एक बार आप देख रहे हैं कि आपके सामने कौन लोग हैं, उन लोग कितने अच्छे से बातें कम्युनिकेट की है। स्टैंडिंग ओवेशन अखिलेश जी के लिए, मनीषा जी के लिए, इन्होंने हम सबको मौसम लौटा दिया, अभिषेक के लिए जिसने हम सबको एक आईना दिखाया और एक ऊर्जा दी नए ढंग की। खूब तालियां बजे, थोड़ी देर तक लगे कि हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। We thank everyone. Just a small information about Abhishek's book, The Grammar of My Body, which we were discussing, came from Penguin Random House. It was released in 2021 or 2023, and the next year it won the Rainbow International Literature Film Award, Festival Award. And he has been writing regularly in Times of India and a lot of things, a lot of newspapers as well. Yesterday, somebody made a comment on me that, oh, ma'am, you're from Patna. You're too cool for that. I'm just so proud to present that he's someone who's brother like me. He's from Bihar. So just please give a big round of applause for him. Thank you, everyone.